ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ گمنامی کی زندگی گزارنے والے کراچی کے رہائشی عمر کے اس حصے میں بسد اصرار اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اپنی زندگی کے تہلکہ خیز گوشوں سے پردہ اٹھائیں۔ ان کا اصل نام کچھ اور ہے، اس داستان میں انہیں جمال کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جنہیں یہ ملک بغیر کسی جد و جہد کے ملا، جنہوں نے اس ملک کی قدر نہ کی۔ پاک وطن کے جانباز بیٹے کی یہ کہانی کسی بھی سنسنی خیز ناول سے زیادہ دلچسپ ہے۔ پاک وطن کا بہادر بیٹا اس پاک وطن کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے والا محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی۔ وطن زاد۔ تو جمال بیٹا، تم اور تمہاری اماں جیتے، میں ہارا۔ ابھی تو پاکستانی ٹیم کے جانے میں کافی دن ہیں، تم تیاریاں کرو۔ پہلے تو ایسی پابندی نہیں تھی، لیکن اب تو تمہیں ہندوستان جانے کے لیے ویزا لینا پڑے گا اور درخواست میں وہاں جانے کی وجہ بتانی پڑے گی۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں اجازت دینے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ کرکٹ دیکھنے کے لیے 3 ماہ تک کسی دوسرے ملک میں رہنا یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ امی نے کہا، ابا باتوں سے تو حوصلہ شکنی نہ کریں بچے کی، اسے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے دیں، آگے جو اللہ کی مرضی۔ ابو نے کہا، چلو ایسے ہی صحیح۔ میں اس دوران میں ہندوستان خطوط لکھ کر کچھ بیوپاریوں سے سنگن لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب سے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھا ہے، اجناس منگوانا اور بھجوانا بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے چڑھانے کے انداز میں تہمینہ کو عنقریب طویل سیاحتی دورے پر ہندوستان جانے کا بتایا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، اس کی نظروں سے بے یقینی نمایاں تھی۔ بولی، ایک تو بھیا تم جب جھوٹ بولنے پر آتے ہو تو پھر کوئی حد نہیں دیکھتے، ایسی بات کرو جو عقل میں آئے۔ میں نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی بات دہرانے کی بجائے تائید طلب نظروں سے ابو جی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے میری بات کی تصدیق کی تو وہ اپنے مخصوص انداز میں ابو اور امی پر چڑھ دوڑی۔ بولی، آپ لوگوں نے لاڈلے میاں کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا ہے۔ ایک فضول شوق پورا کرنے کے لیے پردیس جانے کا کہا، وہ بھی پورے 3 ماہ کے لیے، اور آپ دونوں نے جھٹ سے ہاں کہہ دی۔ کسی دن آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی فرمائش کر دی تو کیا ہوگا؟ ابو جی نے تہمینہ کی جلغار کا جواب دینے کی بجائے قہقہ لگایا۔ امی جان نے بھی مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس پر وہ اچانک روحان سی ہو گئی۔ بولی، آپ لوگ کتنے کٹھور والدین ہیں، اپنے دل کے ٹکڑے سے اتنے دن جدائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن میرا دل تو یہ سوچ کر ہی ہول رہا ہے اپنی پڑھائی کے لیے صبح شام کس کا سر کھاؤں گی، کون میری فرمائشیں پوری کرنے کے لیے دن میں کئی بار بازاروں کے دھکے کھائے گا، کون مجھ سے اپنا پسند کا کھانا پکانے پر جھگڑا کرے گا اور اسے کھلانے سے پہلے تو نوالا میرے حلق سے نہیں اترتا۔ میرا دل اچانک اس کے لیے پیار سے بھر گیا اور میں نے بے ساختہ اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ وہ سسک کر رو رہی تھی، میں پیار سے اس کا سر تھپکتا رہا۔ بالآخر اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے کوشش کی اور مجھ سے الگ ہو گئی۔ اس کا چہرہ اب بھی ناراضی سے پھولا ہوا تھا۔ ابو جی نے صرف اتنا کہا، تہمینہ میری بچی، ہمیں اس کی خوشی اپنے پیار سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر یہ تو سوچ، یہ اتنے دنوں بعد گھر واپس آئے گا تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ جانے وہ قائل ہوئی یا نہیں، لیکن اس نے مزید احتجاج نہ کیا اور کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی رنجیدگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، تاہم میں نے بعد میں اس کی دلجوئی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی تو مجھے اپنے دوستوں کو بھی یہ خوشخبری سنانی تھی۔ میں نے رات 5 دوستوں کی منڈلی میں یہ دھماکہ خیز انکشاف کیا تو ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1 2 نہیں، 4 ہی رشک و حسد کے ملے جلے احساسات سے مغلوب ہو کر پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ ان میں سے احسان میری ہی طرح کرکٹ کا دیوانہ تھا، جبکہ امجد کو بھی کافی دلچسپی تھی۔ سلامت اور حمید کرکٹ سے تو برائے نام دلچسپی رکھتے تھے، البتہ انڈین فلموں اور فلمی ستاروں کے شیدائی تھے۔ سلامت کو موسیقی سے گہری دلچسپی تھی اور وہ محمد رفیع، لتا منگیشکر اور اس کی بہن آشا بھوسلے، مکیش اور طلعت محمود وغیرہ کی گائکی کا دیوانہ تھا، اور اسے ان کے ان گنت فلمی گانے زبانی یاد تھے جنہیں گنگنانے کا وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی آواز بھی بری نہیں تھی۔ ادھر حمید گائکی سے زیادہ اداکاری میں دلچسپی رکھتا تھا اور دلیپ کمار، راج کپور اور دیوانند کی اداکاری کا شیدائی تھا، جبکہ اداکاراؤں میں اسے نمی، وجنتی مالا اور نرگس اچھی لگتی تھی، جبکہ مدھو بالا پر دل و جان سے عاشق تھا اور جاگتی آنکھوں سے اس کی بارگاہ حسن میں سپنے دیکھا کرتا تھا۔
जैसा कि समझा जा सकता है, मेरी हिंदुस्तान रवानगी की खबर पाकर हमीद ही सबसे ज्यादा तड़पा था। उसने कहा, यार जमाल, मेरा बस चले तो तुमसे पहले बंबई पहुंच जाऊं और मधुबाला की रिहाइशगाह के सामने धूनी मार कर बैठ जाऊं, और कुछ न सही सुबह शाम उसकी झलक देखने का मौका तो मिल जाएगा। लेकिन हमीद की इस मासूम सी ख्वाहिश की तकमील में उसके घरेलू हालात सबसे बड़ी रुकावट थे। उसके वालिद मजीद हिंदुस्तान से हिजरत के दौरान शहीद हो गए थे। सऊबत भरे सफर के दौरान काफिले के कुछ अफराद के साथ 5 अफराद पर मुश्तमिल अपने घराने के लिए खाने की तलाश में एक बस्ती में गए थे, जहां बजरंग दल वालों ने उन पर हमला किया था। उनमें से सिर्फ एक शख्स जख्मी हालत में काफिले में पहुंच पाया था। हमीद उन दिनों 12-13 बरस का था। पंजाब और सिंध के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में आर्जी कयाम के बाद ये काफिला बिलाखिर कराची पहुंचा, जहां उसकी बेवा मां ने अपना और 3 बच्चों का पेट पालने के लिए सब्जी की हट्टी लगा ली। इब्तिदाई बरसों से ही हमीद ने अपनी मां का बेशतर बोझ अपने नन्हे शानों पर संभाल लिया और सब्जियां खरीद कर लाने, उनकी छटाई धुलाई करने, हट्टी पर सजाने से लेकर छिली और कटी तरकारियां खारादर के 2 ढाबों को सप्लाई करने जैसी बेशुमार जिम्मेदारियां तन्हा संभाल ली थीं। बचपन में जिस वक्त मुझ समेत दीगर बच्चे स्कूल जा रहे होते थे, हमीद अपनी छोटी सी दुकान पर गद्दी संभाल चुका होता था। उसके मुताबिक वो हिजरत से पहले दिल्ली के निवाह में वाक़े ओखले में एक स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ रहा था और उसे एक होनहार तालिब इल्म समझा जाता था। नए वतन में आमद के बाद घरेलू जिम्मेदारियों के बायस हमीद खुद तो तालीम जारी न रख सका, अलबत्ता छोटे भाई सईद और नन्ही बहन हमीदा को तालीम दिलवाने में गैर मामूली दिलचस्पी दिखाई। हत्ता के चंद साल बाद लड़कपन में कदम रखने वाले सईद ने काम में हाथ बटाना चाहा तो साफ मना कर दिया। अलबत्ता पैसों के लेन देन का हिसाब किताब रखने में माँ की मुआवनत करने की इजाजत जरूर दी। जब से माँ जोड़ों के दर्द की मरीजा बनी थी, हमीद ने उसे जिस्मानी मेहनत के कामों से बिल्कुल सुबकदोश कर दिया था और एक लड़के की मदद से सारा कारोबार खुद संभाल लिया। ऐसे में उसके लिए दुकान से एक दिन भी गैर हाजिर होना मुमकिन नहीं था। मैंने उसकी दिली हालत समझते हुए दिलासा दिया, फिक्र न कर यार, मैं इस बार वहाँ कारोबारी लेन देन का सिलसिला शुरू करके आऊंगा, आना जाना लगा रहेगा। सईद अगले साल मैट्रिक का इम्तिहान दे ले, छुट्टियों में उसे दुकान सौंप कर दोनों भाई इकट्ठे बंबई चलेंगे। फिर तुम अपने दिल की तमाम हसरतें निकाल लेना, कोशिश करेंगे कि कोई मुलाकात की सूरत भी निकल आए। मैंने अपनी दानिश्त में तो सिर्फ हमीद को तिफिल तसल्ली दी थी, लेकिन उसके साथ साथ बाकी 2 भी हमारे साथ चलने का पक्का इरादा बांधने लगे। अगले कई दिन तक हम दोस्तों और मेरे घर वालों में मेरी रवानगी ही गुफ्तगू का मरकजी मौजू बनी रही। हत्ता के वो दिन आ गया जब मुझे अपने पासपोर्ट समेत हिंदुस्तानी सिफारत खाने में हाजिर होना था और वीजे की दरखास्त जमा करवानी थी। मैंने अब्बू जी और उनके एक दोस्त की मदद से बहुत सोच समझकर दरखास्त का मौजू तैयार किया था ताकि दरखास्त मुस्तरद होने का इम्कान कम से कम हो। अलबत्ता मैंने तन्हा सिफारत खाने जाने का इरादा किया, क्योंकि बाज मखसूस मौके पर वहाँ दरखास्तें जमा करवाने वालों की लंबी कतारें लग जाती थीं। उन दिनों भी कुछ ऐसे ही सूरत हाल सुनने में आ रही थी। मौजूदा नस्ल शायद नावाकिफ हो, लेकिन उस जमाने में भी हिंदुस्तानी सिफारत खाना उसी मकाम पर वाक़ था जहां आजकल उसका काउंसिल खाना है। फर्क सिर्फ ये है कि उन दिनों ये एक कदीम तर्ज के आलीशान बंगले की शक्ल में था, जिसके आसपास दीगर कई मुमालिक के सिफारत खाने भी वाक़ थे। वहां तक पहुंचने के लिए मैं कैंट स्टेशन जाने वाली बस में सवार हुआ। स्टेशन से 1-1.5 फरलांग का फासला पैदल तय करने के बाद मैं 10 बजे के करीब सिफारत खाने पहुंचा तो पेशगी इत्तला के ऐन मुताबिक वीजे की दरखास्त जमा करवाने वालों की 2 कतारें नजर आईं। इनमें पहली कतार दरखास्त जमा करवाने वालों की थी, जबकि दूसरी निस्बतन छोटी कतार वीजा दरखास्त का नतीजा जानने और मुख्तसर इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों की थी। मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। मुझे सुबह सवेरे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। बहरहाल मैंने सोचा कि यहाँ पहुँच ही गया तो किस्मत आजमाई में क्या हर्ज है। चुनाचे मैं कागजात का थैला उठाए लाइन में लग गया। आप समझ सकते हैं कि ऐसा तवील इंतजार कितना सब्र आजमा और बेजार कुन होगा, जिसके बाद कामयाबी भी यकीनी न हो। चंद ही मिनट के बाद उकताहट दिलो दिमाग पर गालिब होने लगी। मेरे ऐन पीछे कतार में मौजूद खुश लिबास और उधेड़ उम्र साहब की भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। वक्त गुजारी के लिए हम हल्की फुल्की गपशप करने लगे। गुफ्तगू का आगाज असलम जुबैर नामी उन्हीं साहब की तरफ से हुआ। उन्होंने बताया कि वो महकमा जंगलात में क्लर्क हैं और किसी काम से जालंधर जाने का इरादा रखते हैं। वो खासे खुश मिजाज इंसान थे, बात से बात निकालने और मजे मजे के चुटकुले छोड़ने के माहिर। कुछ ही देर में हम दोनों में अच्छी खासी बेतकल्लुफी पैदा हो गई। वो पैदाइशी लाहौरी थे और उर्दू बोलते हुए दरमियान में ठेठ पंजाबी के अल्फाज ऐसे फिट करते थे कि बेसाख्ता हंसी आ जाती। मसलन उन्होंने क्रिकेट मुकाबले देखने के लिए इंडिया जाने के मेरे इरादे पर कुछ इस तरह हैरानी का इजहार किया।
बोले माशाल्लाह खेल के शौकीन तो बहुत देखे, पर जिंदड़ी में तेरे जैसा रांझन कोई नजर से नहीं गुजरा, बस वंजली की कमी है, चलो वो भी मंगवा देता हूँ लाहौरों। कुछ देर बाद असलम ने बेजारी से मुंह बनाते हुए कहा, बाऊ जमाल आज जिते दाल गलती नजर नहीं आती, हमारे बात तो वैसे भी कोई वेला बंदा लैन में नहीं लगा, यहाँ अपना खून साड़ने से अच्छा है वो सामने वाले होटल में बैठकर चाय पानी करते हैं, लैन आगे बढ़ती नजर आई तो फिर लग जाएंगे। मुझे उसकी तजवीज अच्छी लगी। कुछ ही देर बाद हम सामने छप्पर तले बने चाय खाने में बैठे हुए थे। खिलाफ तवक्को चाय काफी अच्छी थी। असलम ने कुछ नान खताइयां भी मंगवा ली। इब्तिदाई तासुर के बरक्स उसके चेहरे पर अब गहरी संजीदगी दिखाई दे रही थी। मुझसे पूछे बगैर दोबारा चाय का ऑर्डर देते हुए उसने गहरी नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए राजदाराना लहजे में मुझे मुखातिब किया, बाऊ जमाल इजाजत हो तो दो चार गल्ला करना चाहता हूँ तुमसे। उसके अंदाज़े गुफ्तगू में ये वाज़े तब्दीली महसूस करके मैं चौंका। कहा, बोले असलम भाई, अब तक हम बात ही तो करते रहे हैं। वो बोले, नहीं यार, ये कुछ और तरह की गलबात है जो हर ऐरे गैरे से नहीं की जा सकती। इतनी जल्दी किसी पर भरोसा करना हमारी तरबियत के खिलाफ है, पर दिल कहता है कि तू खरा जवान है, मेरी बात माने या न माने तू लोगों में बात खिलारेगा नहीं। उसके लहजे की संजीदगी ने मुझे चौकन्ना होने पर मजबूर किया। मैंने मजबूत लहजे में तसल्ली दी, आप बेफिक्र होकर बात करें असलम भाई, मुझे राज रखना आता है। वो बोला, ठीक है, पहली बात तो ये है जमाल बाऊ कि मेरा नाम असलम नहीं है। मापे ने मेरा नाम बड़े चाव से दिलावर रखा था, पर रब ने इतने नाजुक पेशे में डाला है कि कभी कभी तो दिन में 4-4 बंदों को 4-4 वखरे नाम बताने पड़ते हैं। उसकी बातों से उसकी शख्सियत कुछ कुछ खुलने लगी थी, लेकिन अभी ये समझना बाकी था कि वो मुझ पर ये सब राज क्यों खोल रहा है। मुझे शशोपंज में देखकर उसने जल्दी से बात आगे बढ़ाई। तू पढ़ा लिखा सियाना बंदा है, मुझे पता है मेरी मजबूरी समझ सकता है। नाम में क्या रखा है, दिलावर न सही मुहाफिज समझ लो, अपने वतन की हिफाजत की कसम चुक रखी है, ये नाम भी ठीक है ना। मैंने उलझन जाहिर की। कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी भाई, बस ये बता दो कि मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। उसने धीमे लहजे में कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि क्यों, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम भी अपनी सोनी धरती को खतरे में देखकर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे, है ना। मैंने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है असलम भाई, बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, आप बताएं मैं अपने वतन के लिए क्या कर सकता हूँ। वो बोला, वाह मेरे शेर जवान, तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तो पहली नजर में पहचान गया था कि तुम ज़हीन भी हो और जीदार भी। बच्चे, बात यह है कि तुम भी जानते होगे कि हमारे दुश्मन ने तकसीम से लेकर अब तक एक बारी भी पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं किया, और वो हमारे सोने देश को जख्म लगाने की ताड़ में मुसलसल लगा रहता है। हमारे मगरों लगे खतरे बहुत बड़े हैं और हमारी सरकार के वसाइल बहुत थोड़े, इसलिए तुम्हारे जैसे वतन से मोहब्बत करने वाले शहरियों की मदद लबनी पड़ती है हमें। वो अपनी तवील तकरीर के दौरान सांस लेने के लिए रुका। मैंने उसकी बात में मुदाखलत करने की कोशिश न की। वो बोला, वसाइल की कमी के अलावा हम इसलिए भी आम मुहिब वतन शहरियों की खिदमात हासिल करने की कोशिश करते हैं कि हमें नहीं मालूम कि मेरे जैसे कितने सरकारी बंदों को दुश्मन इदारे पहले से पहचानते हैं। ऐसा हो कि हम कोई कार्रवाई शुरू करते ही उनकी नजर में आ जाएं या फड़े जाएं और हमारा मिशन नाकाम हो जाए। उसे तवक्कुफ करते देखकर मैंने मुदाखलत की। वो तो ठीक है, आपने ये अब तक नहीं बताया कि मैं किस काम आ सकता हूँ और आपने मेरा ही इंतखाब क्यों किया। वो बोला, पहले ये समझ लो कि जो काम तेरे जिम्मे लगाना है वो काफी खतरनाक है। तुम्हें दुश्मन मुल्क से कुछ मालूमात वतन भेजनी है, पर बहुत हथ पैर बचा के ये काम करना होगा। पकड़े गए तो सारी जिंदगी दुश्मन की कैद विच गुजर सकती है। बोलो, है हिम्मत। उसने जो कुछ बताया था वो मेरे जज्बा हुब्बुल वतनी को झंझोड़ने के लिए काफी था, लेकिन क्या इतना बड़ा फैसला मैं लम्हों में कर सकता हूँ। असलम जैसे घाघ शख्स के लिए मेरा तजब्जुब समझना मुश्किल नहीं था। उसने मेरा शाना थपथपाया। कोई जल्दी नहीं है जवान, खूब सोच लो। अगर दिमाग कहे तो अम्मा अब्बा से भी सलाह लेकर फैसला कर ले। अगर फैसला हाँ में हो तो कल सुबह सवेरे यहीं आकर मुझसे मिल लेना, वरना सीधा वीजे की कतार में लग जाना। समझना, साडी मुलाकात कभी हुई नहीं। समझ आया। मैंने इस बात में सर को जुम्बिश दी और उससे हाथ मिलाकर ढाबे से बाहर निकल आया। वापसी पर तमाम रास्ते में इस सनसनीखेज सूरत हाल पर गौर करता रहा जिसने मुझे हैजान में मुब्तला कर दिया था। मैं दिलो जान से ये चैलेंज से भरपूर मिशन कबूल करने पर आमादा था और मुझे इसमें दरपेश संगीन खतरात की भी कोई परवाह नहीं थी। असल सवाल जिसने मुझे शशोपंज में मुब्तला रखा था वो ये था कि क्या ये मामला अब्बू जी के इल्म मिलाकर उनकी इजाजत हासिल करने का खतरा मोल लेना चाहिए या नहीं। अगर उन्होंने संगीन खतरात के बायस इजाजत न दी तो मेरे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे।
शायद वो हिंदुस्तान जाने की इजाजत ही वापस ले लें। क्या मैं उनकी हुक्म उदूली का मुर्तकिब हो सकता हूँ? अगर उन्होंने मुझे रोकने के लिए अम्मी जान को भी सब कुछ बता दिया तो? इसी कश्मकश में जाने कब मैं घर पहुंच गया। इसी उधेड़बुन में रात के खाने का वक्त होने का भी एहसास न हुआ। बिलाखिर तहमीना को मुझे बुलाने आना पड़ा। खाने पर भी बराए नाम गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अब्बू जी ने वीजा जमा करवाने के बारे में पूछा तो कल सुबह दोबारा जाने का कहकर वहाँ के माहौल का हिस्सा बनने की कोशिश की। खाने के फौरन बाद एक बार फिर अपने कमरे में आया। हालांकि ये वक्त दोस्तों के लिए मुख्तस था। मुझे कमरे में आए 15-20 मिनट ही हुए होंगे कि दरवाजे पर आहट हुई। मैं अब्बू जी को अंदर दाखिल होते देखकर चौंक उठा। उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे उठने से रोका और कुर्सी घसीट कर बैठ गए। मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा, खैरियत तो है अब्बू जी? उन्होंने लम्हा भर गौर से मुझे देखा और मेरे ही लहजे में दोहराया, खैरियत तो है बेटा जी। उनका लहजा इतना गंभीर और पुरयकीन था कि मैं सुन होकर रह गया। उन्होंने मुझे संभलने का मौका न दिया। बोले, तुम मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो। मुझे ये भी यकीन है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। हाँ, अगर अपने अब्बू पर एतमाद नहीं तो तुम जबान बंद रखने का हक रखते हो। चंद जुमलों में उन्होंने मेरी राजदारी की धज्जियां बखेर कर रख दी। मैंने सब कुछ बता दिया, ये भी कि मैं ये खतरा मोल लेने का अहद कर चुका हूँ। वो जैसे मुराकबे में चले गए। कई मिनट गहरी सोच में गुम रहने के बाद उन्होंने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, काश मैं अपने पहले फैसले पर कायम रहता, लेकिन अब तुम्हें कैसे रोकूं? बात वतन की सलामती की आ गई है। बस ये सोच कर दिल दहलता है, अगर खुदा न खास्ता मैं तुम्हारी माँ का कैसे सामना कर पाऊंगा। मैं बस इतना ही कह सका, अब्बू, जान हथेली पर रख कर सरहदों की हिफाजत करने वाले भी तो अपनी माओ के लाडले होते हैं। वो भी इसी वतन के बेटे होते हैं, इसी धरती के वतनजाद होते हैं। उन्होंने मेरी बात सुनकर असबात में सर हिलाया और उठकर खामोशी से रुखसत हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।